Okay, great. Let me just share. Chalo. Can you see my screen, everyone? Yes, sir. Okay, let's see next things here. Okay, now let's talk about AWS monitoring. Okay, monitoring. What is monitoring? Monitoring means to monitor resources, right? So let's suppose if I have EC2 machine, I want to monitor this thing. So for that part, we have CloudWatch. अगर मेरे पास एक मशीन है, मुझे उसको मॉनिटर करना है, we have CloudWatch service there. Clear everyone or not? AWS CloudWatch is a service which is used to monitor resources. Clear or not? Perfect. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक EC2 मशीन है, मुझे इस मशीन का CPU यूटिलाइजेशन, कि वो कितना CPU यूज कर रहा है, आई वॉन्ट टू चेक दैट पार्ट. तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे क्लाउड वॉच को सेटअप कर लेंगे. दैट्स हाउ उसकी आंखें, दैट इट मीन्स इट विल बी वॉचिंग, इट विल बी मॉनिटरिंग द रिसोर्स देयर. नॉट क्लियर गाइस? समझ में आ नहीं आया? एवरीवन आया? अब बात करते हैं क्लाउड वॉच के बारे में. क्लाउड वॉच एक्चुअली में फ्री टूल है. इट्स अ फ्री टूल. कैसे? अगर हमारे पास एक रिसोर्स है, आई हैव अ रिसोर्स हियर विच आई हैव टू मॉनिटर, इसके जो रिसोर्स का टाइम फ्रेम है, द टाइम फ्रेम इन विच आई एम गेटिंग द आउटपुट, वो रहेगा 5 मिनट्स. लेट सपोज मैंने 7 पे अपनी मशीन स्टार्ट करी. आई हैव क्रिएटेड माई मशीन ऑन 7 p.m. in the evening. Clear everyone or not? Perfect. I have created my machine at 7 p.m. Next, let's suppose if I talk about कि the information, resource information, कि भाई मेरी इंफॉर्मेशन कब आएगी मेरे पास about this CPU, वो आएगी
5 मिनट के बाद it will be coming in 5 minutes. Clear or not? It will be coming in 5 minutes. Next, after 5 minutes, it will be coming like 7:10. So the time frame is of 5 minutes. Clear, everyone? In every 5 minutes, I am getting the resource metrics. Metrics is the parameter on which we are monitoring. अगर मैं सिंपल बताऊं तो हर 5-5 मिनट में मेरे पास आई विल बी गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट माय सीपीयू यूटिलाइजेशन, और भाई कितना नेटवर्क पैकेट लिया है उसने, कितना लाइक द मशीन इज यूजिंग इंटरनेट लाइक दैट ऑफ इट। तो जो मेट्रिक है ये सीपीयू नेटवर्क वगैरह, अभी तक क्लाउड वॉच डज नॉट ऑफर रैम मॉनिटरिंग। यहाँ पे अपन मेमोरी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, वो आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, यूज अ बिग बैश स्क्रिप्ट, इट्स ऑल अप टू यू। बट हम रैम मॉनिटरिंग अभी नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन और नॉट? सो वी विल बी गेटिंग अवर डेटा फ्रॉम द मशीन इन एवरी 5 मिनट, बिकॉज हर मशीन में क्लाउड वॉच का एजेंट है। हर मशीन में क्लाउड वॉच का एजेंट है। दिस क्लाउड वॉच एजेंट ये इंफॉर्मेशन हमें भेजता है वापस। क्लियर एवरीवन और नॉट? हमारा जो एजेंट है वो हर मशीनों में ऑलरेडी होता है। यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर दिस क्लाउड वॉच एजेंट एज वेल, बट यूजुअली इतना जरूरत नहीं पड़ती। ओके, बाय डिफॉल्ट भी काम चल जाता है। तो ये है फ्री मॉनिटरिंग। ये तो बात होगी फ्री मॉनिटरिंग कि हर 5 मिनट में अपन के पास डेटा आ रहा है ना, कि भाई इतना सीपीयू यूज हुआ। ये है 5 मिनट का इंटरवल। इन एवरी 5 मिनट्स वी आर गेटिंग the information about the metrics of the machine. Clear or not, guys? समझ में नहीं आया? प्रैक्टिकल देखते हैं इसका फटाफट से। So this CloudWatch is only used to monitor the EC2 machines or all other resources? Any resource, Okay, okay. any resource. It could So, be S3 as well. It could be load balancer, auto scaling, database. mm, okay. So it will give information for every 5 minutes, or we can also set the time intervals. No, no. Like by default, we have only two options. First one is the free monitoring, which is of 5 minutes. If you want to go for detailed monitoring, then it will be coming in every 1 minute. Oh, okay. Let's create an EC2 machine here. Can you see everyone here? Monitor, this server is running. If you see monitoring here, can you see, guys? Can you see utilization? All right. So utilization, network in, network out, network packets, CPU credits, right? So this is the monitoring part of it. Now let's suppose if you want to check this monitoring in more detailed manner, like so you have to go first copy the instance ID. That will be easy. Go to CloudWatch.
Cool. So going in CloudWatch section and click on dashboard, create dashboard. Let's say DevOps class, create dashboard here. Which type of widget you want to have it? So you want to have for line, you want to have for number, you want to have stacked area. I prefer stacked area. Bar charts, pie. So you can just go anything there. Now, which instance ID? We have load balancer, we have to monitor EBS, EC2, EFS. Which one we have to monitor? So I will just paste the instance ID directly here. And you can just see here per instance metrics and which metric you want to monitor. So I will say network in, network out, network packets in, network packets out, how much EBS and EBS write speed over there, and CPU utilization, right? So we will be creating for 1 day and create this widget. Now, guys, everyone, can you see, guys, this monitoring part? So network in, network out, network packets in. So you can see average, maximum, minimum, average, and let's say I want to go for every 6 hours, or let's say 1 day, 1 hour. So we can see like that part of it. Any doubt, any queries, guys? If you want to see in more detailed manner, then what will I will be doing? I will be saying in data table. Okay, so in data table, what we will be doing? Or if you want to go for pie charts, let's suppose if you want to go for pie chart, you can see pie chart as well, right? Like this way. If you want to go for bar graph, we can see bar graph as well. If you want gauge, we can see gauge as well. If you want to see in line, we can see line as well. So tell me, guys, which one you want, like the metric part of it? Not clear, everyone? Perfect. And also you can investigate. Now we have AI, right? So we can start an investigation with AI that, hey, what is the usual cost amount, how much it is using everything. We can do that as well. Also, if you want to download this thing as CSV file, you can download as well. Okay. So everything it is clear like that part of it. Clear everyone or not? Rishabh bhai, if I want to see detailed monitoring, right now क्या हो रहा है यहाँ पे? That the data that you are getting from the server, जो डेटा सर्वर से आ रहा है माई EC2 मशीन से, it is coming in every 5 minutes interval, right? अब अगर इस 5 मिनट के बीच में कुछ हुआ, then I will be getting at my 5th minute only. Clear everyone? अगर कुछ हुआ, then I will be getting
no, like notification, or I will be getting the visual representation at fifth minute only. ऐसा नहीं है कि दैट आई विल बी गेटिंग ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 7:02 पे, एट 7:02, इफ समथिंग इज हैपनिंग, राइट, कुछ हुआ है वहां पे, तो आई विल बी गेटिंग लाइक द मेट्रिक अबाउट इट ऑन 7:05, राइट एवरीवन। अब इसको बचने के लिए या फिर इसको काउंटर करने के लिए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड वी डू? व्हाट डू यू थिंक? अगर हमें डिटेल चाहिए तो वी वांट डिटेल मॉनिटरिंग। क्लियर एवरीवन और नॉट? अपन को चाहिए डिटेल मॉनिटरिंग। क्लियर एवरीवन और नॉट? डिटेल मॉनिटरिंग क्या होता है? इन डिटेल मॉनिटरिंग गाइस, यू हैव टू पे मनी टू AWS to monitor the resources. Okay, and after this part, उसके लिए आपको फायदा ये होता है that you will be getting data in every 1 minute. Clear everyone or not? जो टाइम इंटरवल है वो आपका 1 मिनट हो जाएगा। नॉट क्लियर? समझ में आया गाइस, नहीं आया बताओ? क्लियर? अब हाउ टू इनेबल डिटेल मॉनिटरिंग। लेट सपोज अगर हमारे पास एक सर्वर है, EC2, तो वी विल गो टू इंस्टेंस, एंड यहाँ पे इन मॉनिटरिंग सेक्शन ऑप्शन होता है सेटिंग्स का। क्लिक ऑन सेटिंग्स, मॉनिटरिंग, एंड कैन यू सी हियर मैनेज डिटेल्ड मॉनिटरिंग, तो हम वो इनेबल कर सकते हैं। आफ्टर यू इनेबल डिटेल मॉनिटरिंग, द Amazon EC2 console displays monitoring graphs with 1 minute period for the instance. Clear everyone or not? यानी कि अगर आप डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल करते हो, देन you will be getting the metric, you will be getting the data from the AWS machine in every 1 minute period. तो उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग डेटा इन मोर डिटेल्ड मैनर। समझ में आया गाइस, नहीं आया? क्लियर? अब अगर आपको क्लाउड वॉच एजेंट को ही कॉन्फ़िगर करना है, दैट आई वांट टू वैलिडेट विद दिस पार्ट, क्लाउड वॉच एजेंट कैसे काम करेगा वहां पे, दैट यू कैन डू विद दिस पार्ट ऑफ इट। कूल एवरीवन और नॉट? अब configuring the CloudWatch agent will not be your expect of work, because फिर इसमें सिंगल साइन SSM आ जाएगा एजेंट, देन फिर वैलिडेशन आ जाएगा, OIDC आ जाएगा, विच इज क्वाइट एडवांस थिंग। वो प्रोफेशनल और OI के लिए बेसिकली यूज होता है। डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट हियर इज इंस्टेंस का अलार्म। कैन यू सी हियर अलार्म? व्हाट इज अलार्म? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला एक EC2 मशीन है,
एंड आई वांट कि अगर मेरी मशीन का सीपीयू 85% से ऊपर होता है, ओके, फॉर 5 मिनट्स, उस मशीन को टर्मिनेट कर दो या फिर स्टॉप कर दो। आई वॉन्ट दैट इफ आई हैव माई EC2 मशीन और उसका CPU परसेंटेज इज 85% और मोर देन 85% फॉर रेगुलर इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स, तो टर्मिनेट या फिर स्टॉप कर दो। दैट मीन्स आई एम डूइंग सम एक्शन ऑन स्पेसिफिक मेट्रिक, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अलार्म। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आएगा इस नहीं आया? क्लियर? So how to create alarm? So we will be going to EC2 machine and click on alarms here. Directly आप अलार्म यहाँ क्रिएट कर सकते हो और you can go into CloudWatch section and यहाँ पे अलार्म सेक्शन है just below dashboards। ठीक है, so you can just get this part of it, all alarms। अब मुझे अलार्म क्रिएट करना है यहाँ पे, तो क्रिएट अलार्म, सेलेक्ट दी मेट्रिक। भाई किस मेट्रिक के ऊपर आपको अलार्म सेट करवाना है? I will be saying on seat utilization here कि भाई इतने seat utilization के ऊपर प्लीज डू समथिंग। मैंने बोला that if maximum CPU for the period of 5 minutes is greater than, let's say, 85, clear everyone, greater than equal to 85, तो भाई आप लोग इस मशीन को स्टॉप कर देना। कैन यू सी एवरीवन हियर? तो क्लिक ऑन नेक्स्ट। यस, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्या चाहिए हमें? EC2 एक्शन। तो we will just say stop this machine, terminate this machine, cool everyone। तो मैं बोलूंगा टर्मिनेट कर देता है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अलार्म नेम लेट्स से टेस्ट अलार्म। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्रिएट अलार्म। अब मैं जबरदस्ती अभी राइट नाउ माय मशीन इज स्टिल वर्किंग बिकॉज अभी मशीन का CPU यूटिलाइजेशन नहीं हुआ इतना। सो व्हाट विल आई विल बी डूइंग, आई विल बी गोइंग इनसाइड दिस मशीन एंड जान पूछ कर इंटेंशनली मैं इसका CPU यूटिलाइजेशन बढ़ा दूंगा। हाउ विल विल डू इट? एक एप्लीकेशन आता है स्ट्रेस करके, वी हैव टू इंस्टॉल एप्लीकेशन स्ट्रेस हेयर। क्लियर? अब क्या करेंगे? द कमांड विल बी स्ट्रेस हाइफन हाइफन CPU, दो CPU हाइफन हाइफन टाइम आउट, लेट्स से 600 सेकेंड्स के लिए। अब देखो, लेट्स वेट आराम से। Or can you explain this command? इट मीन्स
I want to stress my CPU. That means how many CPUs? Two CPUs. And for time out of 600 seconds. That means in for 600 seconds, I want to stress my CPU. Okay.
कूल। लेट्स सी गाइस कि क्या हो अपनी मशीन का हालत। इफ आई जस्ट सी हियर, माय मशीन इज टर्मिनेटेड। व्हाई? बिकॉज जो अलार्म है इन क्लाउड वॉच, इफ आई जस्ट गो देयर, you will be able to see the alarm is in active state, right? Alarm, alarm, alarm. Can you see guys here? Because it has crossed more than 85% for about 5 minutes. Clear everyone or not? So that is why guys, उसने मशीन को टर्मिनेट कर दिया. Any doubt, any queries guys? When the server will come back, Rishabh? No, it will not come back. It's terminated. Now, if you want to configure this thing in auto scaling group, right? If you want to scale this up in auto scaling group, then what we can do here, we will be just click on action, go to alarm, create alarm, select a metric, and can you see here auto scaling? So specifically, you can just select your auto scaling. Let me just tell you about it. Let's go to EC2, auto scaling group. If you remember auto scaling group yesterday, we will be creating a new auto scaling. Select the template. सर आई हैव अ डाउट हियर। Mm-hmm. कल जब मैंने ये ट्राई किया था ना, तो इंस्टेंसेस डिलीट ही नहीं हो रहे थे मेरे से। मतलब जब आई ट्राइड डूइंग द ऑटो स्केलिंग ग्रुप, आई हम्म डिलीटेड द लोड बैलेंसर एंड ऑल्सो द ग्रुप, बट जो इंस्टेंसेस क्रिएट किए थे ना मैंने तीन, वो बार वो बार आ रहे थे, मतलब दे विल बी कमिंग हाँ, बैक. तो या you have to delete auto scaling group, no? आई डिड दैट बट इट वाज स्टिल शोइंग। No, no. See, it will be showing those EC2 machines if the auto scaling group is still active. You have to delete the auto scaling group here. ओके Okay. If the auto scaling group is still there, the machines will come back again, 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 again. So you don't have to delete the machines. You have to delete the auto scaling group there. ओके New ASG, launch template, availability zones. Now, we don't want to attach load balancer. Now let's click on next. Desired 3, minimum 1, maximum 5. And we can just see here that in scaling policy, right? And scaling policy, what we can include over here, we can include custom CloudWatch metric. Okay. So here we can just provide a custom CloudWatch metric here. Cool, everyone. To scale in and scale out policy specifically. And if you want to go for ALB target groups, so we can go for ALB as well, and average seat utilization, like that part of it. Now, let's suppose if you want to give more capacity, right? And let's say click on next. If I just go to alarm state, now CloudWatch, alarm, हम यहाँ जाएंगे, अलार्म्स के पास जाएंगे एंड अलार्म्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे. ठीक है, इस वाले इंस्टेंस के ऊपर, लाइक दिस वन, कहाँ गया सीपीयू यूटिलाइजेशन, दिस वन, सिलेक्ट मेट्रिक. कूल. अब उसके बाद अपन ने यहाँ पे डिफाइन करना है कि 85 के बाद वी हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट इन अलार्म. अब ऑटो स्केलिंग का एक्शन क्या होगा, राइट? ऑटो स्केलिंग का एक्शन क्या होगा?
तो वी हैव टू सिलेक्ट अवर ऑटो स्केलिंग ग्रुप, जो भी हमने क्रिएट करा होगा, एंड उसके बाद जो भी एक्शन आप चाहते हो कि मेरी मशीन स्टॉप हो जाए, मेरी मशीन रीस्टार्ट हो जाए, दैट यू कैन सेलेक्ट विद ऑटो स्केलिंग एक्शन। तो उससे क्या होगा, वंस योर वन मशीन, फॉर एग्जाम्पल आपका ऑटो स्केलिंग काम कर रहा है यहाँ पे। क्लियर एवरीवन? योर ऑटो स्केलिंग इज वर्किंग। परफेक्ट। ऑटो स्केलिंग काम कर रहा है आपका यहाँ पे। ना इफ आई वांट कि अगर कोई भी मशीन का मेरा यूटिलाइजेशन इज मोर देन 80% फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ 5 मिनट्स, तो क्या करो, उस मशीन को स्टॉप कर दो और एक और न्यू मशीन क्रिएट कर दो। तो उससे क्या होगा कि ये मशीन स्टॉप हो जाएगी, या फिर मैं चाहता हूं कि ये मशीन स्टॉप भी ना हो, एक और मशीन क्रिएट कर दो। जो हमारा एएसजी काम करता है, सो ऑन दैट बेसिस आप एक और मशीन क्रिएट कर दो। सो वी कैन सेलेक्ट दैट एक्शन हियर एज वेल। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आएगा, इस नहीं आया? यस सर। कूल। अब आप सबका होमवर्क ये है कि आपको, चाहे आप चैट जीपीटी से पूछो, चाहे आप यूट्यूब पे रिसर्च मारो, दिस इज योर रिसर्च। यू हैव टू मेक एन आर्किटेक्ट, यू हैव टू मेक एन आर्किटेक्चर इन विच आपको अपनी मशीन्स क्रिएट करनी है ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे। ओके, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। और मैं चाहता हूं, अगर मेरी मशीन्स का यूटिलाइजेशन मोर देन 80% होता है, उनको मॉनिटर कौन करेगा? क्लाउड वॉच। ऑटो स्केलिंग ग्रुप को मॉनिटर कौन करेगा? क्लाउड वॉच। अगर उनका मोर देन 80% होता है, तो प्लीज क्रिएट वन मोर मशीन। क्लियर? तो आपको ये आर्किटेक्चर क्रिएट करना है। मैं एक हिंट दे देता हूं जो आप चैट जीपीटी पर लिख सकते हो। हेल्प मी टू क्रिएट ASG architecture on AWS with CloudWatch, metrics, and alarm on 80% of CPU utilization to create new instance in auto scaling group, step by step। तो आप ये प्रॉम्प्ट लिखोगे अगर चैट जीपीटी में, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में आ जाएगा एट हाउ टू मेक द आर्किटेक्चर। कूल एवरीवन? तो आपको ये खुद से रिसर्च करनी है एंड क्रिएट करना है। क्लियर एवरीवन और नॉट? यस सर। चलिए जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्लाउड वॉच में और क्या क्या चीज़ें हैं? क्लाउड वॉच में अलार्म्स क्लियर हो गया, डैशबोर्ड, लॉग्स। अच्छा, लॉग्स के बारे में बाद में बात करेंगे। मेट्रिक्स पता चल गया गाइस, दैट हाउ टू चेक एनी मेट्रिक। ऑटो स्केलिंग का अगर मेट्रिक चेक करना है, इफ आई वांट टू चेक मेट्रिक ऑफ आवर EC2 EFS जगह चाहिए, सो वी कैन जस्ट चेक आवर फाइल सिस्टम मेट्रिक्स एज वेल। ठीक है, ये हो गया मेट्रिक्स का। अगर मुझे इवेंट चेक करने हैं, तो आई कैन चेक माई इवेंट्स एज वेल। खैर, इवेंट्स के लिए तो मैं आई प्रेफर क्लाउड ट्रेल एनी हाउ। आफ्टर दैट गाइस, लेट्स सपोज अगर मुझे ये चेक करना है,
यहाँ पे एक और भी था। Yep, internal monitors. Can you see everyone here? कि भाई आपको ये पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे इशू है रिगार्डिंग इंटरनेट और नेटवर्क, तो वो आपको शो कर देगा। फॉर एग्जांपल मुंबई का, इफ यू जस्ट सी हियर मुंबई, लेट्स यहाँ पे लिखते हैं मुंबई का। तो भाई मुंबई में कुछ नहीं आ रहा। अभी 32 मिनट पहले या 2 घंटे पहले पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पेशावर, तो यहाँ पे अभी इशू आया था। कूल एवरीवन, देन सऊदी साइबर इंटरनेट सर्विस यालकोट पाकिस्तान कराची, like that part of it. So you will be able to see like this way. Clear everyone or not? Perfect. तो guys ये है क्लाउड वॉच आपका, to basically help in watching up the resources. अब आगे बात करते हैं रिगार्डिंग नोटिफिकेशन के ऊपर। कूल। लेट्स सपोज गाइस हमारे पास कोई AWS रिसोर्स है। आई हैव AWS रिसोर्स एंड मुझे इसका नोटिफिकेशन चाहिए। आई वांट नोटिफिकेशन डायरेक्टली। क्लियर और नॉट? I want notification directly, either on my email or SMS और एनी हाउ मुझे उसका नोटिफिकेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अपन का ऑटो स्केलिंग ग्रुप चल रहा है, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप इज वर्किंग फाइन। क्लियर? एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप में लेट सपोज आपका मशीन जो है, इट इज बीइंग लाइक कि मशीन टर्मिनेट हो गई, एक न्यू मशीन क्रिएट हो गई, लाइक दिस काइंड ऑफ नोटिफिकेशंस यू वांट। तो आप लोग वो नोटिफिकेशंस अपने ईमेल पे या फिर अपने मोबाइल फोन के एसएमएस पे हाउ कैन यू रिसीव? सो फॉर दैट पार्ट वी हैव एसएनएस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। दिस हेल्प्स यू टू गेट नोटिफाइड अबाउट द रिसोर्स। अब भाई इसमें एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल गाइस आप सबने गाइस यूट्यूब यूज करा है? एवरीवन, ऑल ऑफ यू गाइस हैव यू यूज्ड यूट्यूब? Yes, sir. Sir, yes, sir. यस। अब YouTube में फॉर एग्जांपल अपन ने लिखा कि यार एक टी सीरीज का चैनल है गाइस, वी हैव अ चैनल नेम टी सीरीज। अब टी सीरीज गाइस हर रोज अपने उस पे इट अपलोड सॉन्ग्स। अब गाइस क्या आपको नोटिफिकेशन आएगा टी सीरीज का डायरेक्टली कि वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू वीडियो, वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू सॉन्ग, लाइक दैट ऑफ इट? बताओ। Directly नहीं आएगा. We have to on the notification. फर्स्ट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, करेक्ट? Subscribe and on the notification. करेक्ट। फर्स्ट वी हैव टू सब्सक्राइब इट and then we have to allow the permission to get notified. Correct or not?
तब जाके ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। क्लियर और नॉट? परफेक्ट। क्लियर एवरीवन? अब अगर मैं बात बोलूं यहाँ पे कि ऋषभ भाई, आई वॉन्ट टू गेट नोटिफाइड द सेम वे इन एसएनएस, तो एसएनएस में भी यही चीज चलती है। सॉरी, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। फर्स्ट, आपको एक टॉपिक क्रिएट करना होता है एंड यू हैव टू एंटर योर आइदर ईमेल आईडी और योर एसएमएस, व्हाटएवर यू वांट टू हैव इट, एंड इस टॉपिक को यू हैव टू सब्सक्राइब, यानी कि आपको ईमेल अपने मेल बॉक्स में जाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू गिव द परमिशन कि मुझे इसको सब्सक्राइब करना है, एंड देन यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन। अब फिर आप इस टॉपिक को कहीं भी अपने AWS रिसोर्स में यूज कर सकते हो। इम्प्लीमेंट दिस टॉपिक इन एनीवेयर। ठीक है, लेट्स सी, प्रैक्टिकली देखते हैं इसको एक बार। लेट्स गो टू एसएनएस। यहाँ पर लिखते हैं, लेट्स से न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम लेट्स से हाई फाइव। क्रिएट टॉपिक। अब यहाँ पे वी हैव टू क्रिएट सब्सक्रिप्शन कि किस किस ने इस टॉपिक को सब्सक्राइब कर रखा है। सो आई विल बी क्रिएटिंग अ सब्सक्रिप्शन हियर, तो थ्रू विच आई वांट टू रिसीव माय डेटा आई विल बी सेइंग ईमेल। अगर if you want to go for SMS, then you have to add your phone number. If I want to get as a email, then I will be entering my email ID. Cool. Any doubt, any queries, guys? अब क्या करेंगे? Let's go to our email box. Can you see, guys, here? AWS notification. अब वो कह रहा है यार, confirm this subscription. So I will be clicking on confirm the subscription. Subscription has been confirmed here. Clear or not? Subscription is confirmed. अब यहाँ पे एक बार चेक करेंगे रिफ्रेश करके, and that is correct. Your subscription has been confirmed. Can you see confirmed here? अब हम इस टॉपिक को कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू EC2 और मैंने एक यहाँ पे मशीन क्रिएट कर दी। लेट्स कनेक्ट दिस मशीन। अब क्या करेंगे?
We will be just installing stress. अब लेट्स कम बैक हियर और मैं यहाँ पे एक अलार्म क्रिएट करूंगा. लेट्स गो टू क्लाउड वॉच. Let's delete this alarm. Create a new alarm. भाई किस metric के ऊपर? This is our machine. So let me just copy the instance ID. Super utilization. Select this metric. If it is like having maximum super utilization for 5 minutes up to more than 85%. तो क्या करना है आपने? In alarm and you have to create a SNS topic here. और we already have our SNS topic. हमारे पास अभी already topic है SNS का. On that basis, I will select और वो इस ईमेल के ऊपर मुझे नोटिफाई कर देगा. ठीक है, क्लिक ऑन नेक्स्ट. अलार्म नेम SNS टॉपिक चेक. राइट, 85%. अब यहाँ पे क्या करेंगे? वी विल स्ट्रेस माई CPU फॉर टाइम के लिए. टाइम आउट विल बी 600 seconds. लेट्स वेट.
cool, let's see. देखो guys, an alarm. If I go to my EC2 machine, और अगर मैं अगर मेल चेक करूं, so can you see guys here? High five. हमारे पास अलार्म आ गया स्टॉकहोम के लिए, राइट? रिमेंबर कि भाई हमारी मशीन ने इतना इतना सीपीयू क्रॉस कर दिया। क्लियर एवरीवन और नॉट? तो यही चीज आपको अपने प्रोडक्शन में भी करनी है कि जब भी ऑटो स्केलिंग ग्रुप, जब आप लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाते हो गाइस, इफ आई लेट्स गो हियर EC2, सी वन अलार्म स्टेट, राइट? तो ये मशीन स्टॉप नहीं हुई बिकॉज मैंने वहां पे स्टॉप का एक्शन डाला ही नहीं एक्शन, बट मुझे अलार्म का स्टेटस मिल गया वहां पे। अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ, लेट मी जस्ट डिलीट दिस मशीन। अब whenever we are creating auto scaling group as well, new auto scaling group, select the launch template, click on next. One, 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 like that part of it. अब यहाँ देखना, वी ऑल्सो हैव नोटिफिकेशन पार्ट, कि आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप के लिए, जी हाँ, सिलेक्ट योर टॉपिक एंड वो ये इवेंट्स के ऊपर आपको नोटिफाई करेगा। लॉन्च, टर्मिनेट, फेल टू लॉन्च, फेल टू टर्मिनेट। तो क्लिक ऑन नेक्स्ट ईयर, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब गाइस बाय चांस अगर मैं चेक करूंगा अपना ईमेल यहाँ पे, तो आई विल बी गेटिंग माय ईमेल
कैन यू सी ऑटो स्केलिंग ग्रुप कि हमने ये मशीन क्रिएट कर दी है, ऑल द ईमेल्स। तो दैट इज हाउ गाइस आपके मैनेजर वगैरह जो भी टीम लीड में होंगे, प्रोजेक्ट लीड में होंगे, दे विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन अबाउट दीज रिसोर्सेज। क्लियर एवरीवन और नॉट? अब मैं मशीन को या फिर अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप को टर्मिनेट कर देता हूँ। कूल। डिलीटेड एंड यहाँ पे आप मुझे मेल आ जाएगा कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप टर्मिनेशन हैज बिन लाइक टर्मिनेटेड। कूल एवरीवन। तो उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एनी डाउट, एनी क्वेरीज गाइस? समझ में आया गाइस, नहीं आया एवरीवन? एंड वी विल बी गोइंग टू एसएनएस and we can delete our topic here. Cool everyone. तो हमारे पास SNS क्लाउड वॉच भी हो गया। Let me just connect online board। तो गाइस हमारे पास जो टॉपिक्स हो गए हैं वो मैं वापस लिख देता हूँ। IAM, EC2, EBS, EFS, S3, क्लाउड फ्रंट, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, लोड बैलेंसर और क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल, SNS। अब आगे कंटिन्यू करना है आज, या फिर जो नेक्स्ट सर्विसेज हैं वो चाहते हो नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करना चाहते हो? बताओ, व्हाट डू यू वांट? क्या चाहते हो गाइस, बताओ। नेक्स्ट वीक सर? सो नेक्स्ट वीक गाइस आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से। वी विल बी स्टार्टिंग SQS, वी विल बी स्टार्टिंग कंटिन्यूइंग विद अवर रोड 53 एंड वी विल बी गोइंग फॉर RDS। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो अपन को कवर करने हैं नेक्स्ट वीक, एंड SQL एज वेल। तो पहले SQL करेंगे, देन RDS, and that how we will work. Clear everyone or not? Sir, one request. Next week there is a Eid, हम्म। तो कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर पा सकते फिर। कब है? मॉर्निंग सैटरडे संडे? सर सैटरडे को है सर ईद। सैटरडे को है। ओके, एक बार टीम से मैं चेक कर लूंगा एक बार दैट वी हैव इट और नॉट।
Yes, sir. चलेगा. Okay, sir. Cool. Perfect. Then guys, catch you up next week. Happy Eid. Cool. Bless you everyone. Bye bye. Have a Bye bye. great day. Good night. Have a great weekend.